ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ MCQ क्वेश्चन एंड आंसर्स ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟି ଆଜି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କହିବ, କାରଣ ଅନେକ ପିଲା ଏଥିରେ ଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ ସେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ହୁ ୱେର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଟୁ ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ କେଉଁ ବଣିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁ ବଣିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ତମର ଦି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଥର୍ଡ ଦ ଡଚ୍, ଫୋର୍ଥ ଦ ଇଂଲିଶ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଥାର୍ଡ ରହିଲା ଡଚ୍, ଫୋର୍ଥ ରହିଲା ଇଂଲିଶ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି, ଦ କମର୍ସିଆଲ ରାଇଭାଲି ଅଫ୍ ଦି ୟୁରୋପିଆନ୍ ସୁନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଡ ଇନଟୁ ଡ୍ୟାସ୍? ବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶତ୍ରୁତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଶୀଘ୍ର କ'ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲି, ସେକେଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ରାଇଭାଲି, ଥର୍ଡ କଲଚରାଲ ରାଇଭାଲି, ଫୋର୍ଥ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ସାମାଜିକ ଶତ୍ରୁତା, ତୃତୀୟ ରହୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶତ୍ରୁତା, ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତୁମର 1 ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲି ବା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ରିଚ୍ଡ କାଲିକଟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍? ବା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପହଞ୍ଚିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଯେତେବେଳେ କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଲିକଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ତମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ଆଲମେଡ଼ିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲବୁକ୍ୟୁରିକ୍, ଥାର୍ଡ ଜାମୋରିନ୍, ଫୋର୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଥାର୍ଡ ଜାମୋରିନ୍। ଜାମୋରିନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ। ଜାମୋରିନ୍ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତର ଆସି କାଲିକଟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜାମୋରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହୁଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଭାଇସରୟ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫ୍ରମ୍ 1509 to 1558? 1509ରୁ 1515 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରି ରଖୁଛି, 1509ରୁ 1515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଁ ତୁମର ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ଆଲମେଡ଼ିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍, ଫୋର୍ଥ ଆଲବୁକ୍ୟୁରିକ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ରହୁଛି 1
ଆଲମେଡ଼ିଆ। ସୋ ଆଲମେଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ 1509 ରୁ 1515 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି why did Portuguese fail to establish their control over India for a long time? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲେ ବା କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଦିନ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲେ? ତୁମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ଆନୋଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ସ, ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସର ଅଭାବ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଫାନାଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହୁଛି ଦ ଡଚ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସୋ ଡଚ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 1601 AD, ସେକେଣ୍ଡ 1602 AD, ଥାର୍ଡ଼ 1603 AD, ଫୋର୍ଥ 1604 AD। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଁ କିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର 1 1601 AD। ଠିକ୍ ଅଛି, 1601 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡଚ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି ଦ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଦି ଡଚ୍ ରିମେନ୍ଡ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସୋ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମାସି ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ି ରଖୁଛି ଯେ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମାସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ବା ଭାରତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 80 years, ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି 90 years, ଥାର୍ଡ଼ 100 years, ଫୋର୍ଥ 110 years। 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 100 ଏବଂ 10 ବର୍ଷ, 110 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ 100 years। ସୋ 100 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ସ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରୁଲର୍ସ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ଶାସକ ଭାରତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ଶାସକ ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମର ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ଲୁଇସ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଇସ୍ 13, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ 12th, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ 13th, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ 14th, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ 15th। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଲୁଇସ୍
14th लुईस चतुर्दश लुईଙ୍କ ସମୟରେ बा चतुर्दश लुई भारत रे फ्रेंच कंपनी वाणिज्य करने पृष्ठपोषकता करथिले बा पैट्रोनाइज करथिले। परवर्ती प्रश्न को जिबा हमें। परवर्ती प्रश्न तुमर रहउची व्हिच वार प्रूव्ड टू बी फाटल फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। भारत रे फ्रेंच बा फ्रांस अधिक दिन तिष्ठिया पाई किए डेडली बा मृतवत साबित होता बा फाटल अर्थ हो मृतवत साबित होता कारण तापर से मैंने अधिक दिन रही पारि नथिले। तमर उत्तर पाई ऑप्शन रोची 1 फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, फोर्थ ऑल द 3 वार्स। ताहले सठिक उत्तरटी कौन हम वो तुमको ओडिया आउ थे ऑप्शन कही रखुची। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकेंड रे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, चतुर्थ रे उपरोक्त तीनोटी जाक युद्ध। ताहले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी तुमर हम 4 नंबर जोटा कहते ऑल द 3 वार्स। प्रथम द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत वर्ष रे फ्रेंच मानकर एक्जिस्टेंस पाई बा भारत रे तिष्ठ रहा फाटल बा मृतवत साबित होता। परवर्ती प्रश्न को जीवा हमें। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोचे नेम द ईयर इन व्हिच ए कंपनी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द इंग्लिश फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। नेम द ईयर इन व्हिच ए कंपनी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द इंग्लिश फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। केउ वर्ष इंग्रेज माने भारत रे वाणिज्य व्यवसाय करने कंपनी प्रतिष्ठा करथिले। आउ थर प्रश्नटी पढ़ी रखुची केउ वर्ष भारत रे वाणिज्य प्रतिष्ठा करने इंग्रेज माने वाणिज्य व्यवसाय करने इंग्रेज माने कंपनी प्रतिष्ठा करथिले। ठीक अच्छे। ताले सठिक उत्तरटी तुम ऑप्शन रोची 1 1596 एडी 1596 ख्रीष्टाब्द, 1597 एडी 1597 ख्रीष्टाब्द, थर्ड रोची 1599 ख्रीष्टाब्द 1519 एडी 99 एडी, फोर्थ रोची 1600 एडी बा 1600 ख्रीष्टाब्द। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहीपर? सठिक उत्तरटी हूँ तुम 1600 ख्रीष्टाब्द। 1600 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज माने भारत में वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठा करने गोटे कंपनी प्रतिष्ठा करथिले बा गठन करथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया इन ऑर्डर टू गेट ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। निम्नलिखित मानक मध्यरु किए भारत को वाणिज्य करने जो अधिकार मागिवाई भारत भ्रमण रे आसीथिले। आउ थे प्रश्नटी पढ़ी रखुची भारत रे ट्रेडिंग राइट्स बाई वाणिज्य अधिकार पाई भारत वर्ष को निम्नलिखित किए आसीथिले। तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 विलियम हॉकिंस, सेकेंड कैप्टेन मिडिल्टन, थर्ड सर थॉमस रॉय, फोर्थ ऑल द 3। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहीपर? सठिक उत्तरटी किए कहीपर? सठिक उत्तरटी हूँ ऑल द 3। ये तीनोटी जाक लोक भारत वर्ष को आसीथिले ट्रेडिंग राइट्स पाई बा भारत में वाणिज्य व्यवसाय करने जो अधिकार समय शासन करते मुगल माने से जो वाणिज्यिक अधिकार रिसीव माने मागिवाई से माने 3 जन आसीथिले। ठीक है। विलियम हॉकिंस, कैप्टेन मिडिल्टन, थर्ड जो आमर सर थॉमस रॉय 3 जन जाक आसीथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोची व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड। भारत रे सॉरी ईस्ट इंडिया इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तार मूल लक्ष्य कौन थिला? ठीक अच्छे। जदिओ से माने भारत वर्ष को वाणिज्य व्यवसाय आसीथिले तांकर मूल लक्ष्य कौन थिला? प्रथम थिला टेरिटोरियल एक्सटेंशन,
सेकेंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, थर्ड बोथ 1 and 2, फोर्थ हूँ नन ऑफ द थ्री। राज्यर विस्तार, द्वितीय रही राजनैतिक सुप्रीमेसी बा राजनैतिक कर्तृत्व, थर्ड थिला उभय 1 and 2 बा उभय 1 और 2, फोर्थ थिला नन ऑफ द थ्री। सो तुमर उत्तर रे ऑप्शन कहली ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो? सठिक उत्तरटी तुमर होची सेकेंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। परे से माने टेरिटोरियल एक्सटेंशन पई इच्छा करथिला, आसीथिले वाणिज्य व्यवसाय करिया पई, किंतु भारतर राजनैतिक गोलिया पानी सुजोग नहीं, से माने भारत वर्ष रे शासन प्रतिष्ठा करिया पई बा सेमानकर कर्तृत्व जाहिर करिया पई चेष्टा करिथिले। ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुमरा रहउची इन 1740 AD द एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस इन इंडिया वेयर। सो 1740 ख्रीष्टाब्द रे भारत एवं फ्रांस जो संपर्क इंग्रेज एवं फ्रांस भारत रे इंग्रेज और फ्रांस रो संपर्क किबळी भाव रे थिला। आउ थर प्रश्नटी पढ़ी रखुची 1740 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे इंग्रेज एवं फ्रांस भितर की प्रकार संपर्क थिला। तमर उत्तर ऑप्शन रहउची 1 कोडियल सहयोगपूर्ण थिला, सेकेंड रहउची स्टेन्ड बा जोटा हमर कलंकपूर्ण, तृतीय थिला अनरिलायबल बा अविश्वास योग्य, फोर्थ थिला नन ऑफ द थ्री। उपरोक्त तीनोटी मध्यरु केउटी नुहे। ताले सठिक उत्तरटी कौन थिला पिलाए? सठिक उत्तरटी होउची कोडियल। प्रथम पर्याय रे कोडियल थिला, किंतु परवर्ती पर्याय रे से माने कौन करथिले ना परस्पर प्रति माने जो वैर भाव बा शत्रुता आचरण करिबा आरंभ कले, कारण सेते बेलकू भारत वर्ष रे वाणिज्य व्यवसाय करिया पाई सेमानकर सॉरी एक्चुअली एटा उत्तरटा हबो तुमर अनरिलायबल। ठीक अछि। तृतीयटा हबो तुमर एक्चुअली उत्तर अविश्वास योग्य थिला। एटा कोडियल हबो नाही, काहे कि ना सेतेलकू उभय उभयଙ୍କ भितर युद्ध पाई वातावरण खेली आसथिला। सो कोडियल हबो नै उत्तर। उत्तरटी हबो तुमर अनरिलायबल बा समान भितर अविश्वसनीयता, केही काहाकू रिलाय करि पार नथिले, माने निर्भर करि पारु नथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्नटी जिबा। परवर्ती प्रश्न रहउची तमर द फ्रेंच were completely cruised by the English in dash। फ्रांस माने बा फ्रेंच माने भारत वर्ष रे इंग्रेज मान द्वारा केबे पूरा पूरी ध्वस्त विध्वस्त हो जाई थिले। तमर उत्तर पई सठिक उत्तर पई तुमर ऑप्शन रहउची 1 1817 AD 1817 ख्रीष्टाब्द, सेकेंड 1818 ख्रीष्टाब्द 1818 AD, थर्ड 1819 AD 1819 ख्रीष्टाब्द, फोर्थ रहउची 1820 AD 1820 ख्रीष्टाब्द। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी तुमर हो 1818 AD 1818 ख्रीष्टाब्द बेलू फ्रांस भारत वर्ष रे इंग्रेज मानक पूरा द्वारा पूरा माने ध्वस्त विध्वस्त हो जाइथिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा पिलाए। परवर्ती प्रश्नटी तुमर रहउची व्हाट वर द कॉजेस ऑफ राइवलरी बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। इंग्रेज एवं फ्रेंच मानक भितर केउ कारण शत्रुतार केउ कारण गुड़िक थिला। तमर उत्तर रे ऑप्शन रहउची 1 टू एस्टाब्लिश ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। भारत वर्ष रे वाणिज्यिक एककता बा वाणिज्यिक जो एकचाटिया अधिकार साब्यस्त प्रतिष्ठा करिबा। सेकेंड रहउची टू मेंटेन सुप्रीमेसी इन इंडिया। भारत वर्ष रे कर्तृत्व बा अधिकार जाहिर करिबा बा कर्तृत्व जाहिर करिबा।
थर्ड रोचे राइवरली इन कॉलोनाइजेशन बा जो उपनिवेश स्थापन रे शत्रुता। फोर्थ रोचे ऑल द थ्री उपरोक्त तीनोटी जाक मध्यरु समस्त। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी हम ऑल द थ्री उपरोक्त तीनोटी जाक कारण इंग्रेज एवं फ्रांस भितर शत्रुतार कारण थिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुमर रोची द व्हिच ट्रिटी वाज कंक्लूडेड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर? क्यों चुक्तिटी स्वाक्षरित होता प्रथम कर्नाटक युद्ध पर? ठीक अच्छे। ताले सठिक उत्तर तुम ऑप्शन रोची 1 ट्रिटी ऑफ पेरिस, सेकेंड ट्रिटी ऑफ लंडन, थर्ड एक्सला चैपल ट्रिटी, फोर्थ नन ऑफ द एबव। पेरिस संति पेरिस चुक्ति, लंडन चुक्ति, एक्सला चैपल ट्रिटी बा एक्सला चैपल चुक्ति उपरोक्त मध्य केउंटी नहीं। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी किए कहीपर? सठिक उत्तरटी हूँ तुम एक्सला चैपल है। एक्सला चैपल ट्रिटी फल प्रथम कर्नाटक युद्ध परिसमाप्त होता। यहाँ इंग्लैंड और पेरिस मध्य होता बा फ्रांस मध्य होता। फ्रांस रे किंतु तार प्रभाव एठी देखा ये युद्धटी बंद होता। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोची हु रिमार्क्ड। आउ थे पढ़ुची तुम प्रश्न रहा हु रिमार्क्ड इट throwing light on the significance of the first Karnataka war. It set the stage for experiment of duplex and the accomplishment of Clive. किए यही मंतव्यटी देइथिले प्रथम कर्नाटक युद्ध परिप्रेक्षी तार गुरुत्व को देखी यही मंतव्यटी देइथिले। मंतव्यटी यहीपरि थिला जे प्रथम कर्नाटक युद्ध डुप्लेक्स पाई गोटे एक्सपेरिमेंट स्टेज थिला एवं क्लाइव पाई यह अकम्प्लिशमेंट बा सफलतार गोटे स्टेज थिला। ताले सठिक उत्तर पाई तुमर रोची ऑप्शन ए 1 डॉडवेल। डॉडवेल कही, सेकेंड VS स्मिथ कही, थर्ड लैंडपोल कही ना, फोर्थ GL ग्रोवर कही। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? किए कहीपर? सठिक उत्तरटी किए कहीपर? सठिक उत्तरटी हूँ तुमर 1 डॉडवेल। ठीक अच्छे। डॉडवेल एक कथाटी कही। तमर परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रोचे द सेकेंड कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन। द्वितीय कर्नाटक युद्ध केबेरु केबे पर्यंत होता? तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 1749 टू 1752 AD, सेकेंड रोची 1749 टू 1754 AD, थर्ड रोची 1749 टू 1753 AD, फोर्थ रोची 1749 टू 1755 AD। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? किए कहीपर? सठिक उत्तरटी तुम हूँ 1749 रु 1750 AD। एक नंबर हूँ उत्तर। ठीक अच्छे। ताले आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोचे व्हिच कंट्री गॉट विक्ट्री इन द सेकेंड कर्नाटक वॉर। क्यों देश द्वितीय कर्नाटक युद्ध में विजय लाभ करथिला? तुमर उत्तर पाई ऑप्शन रोची ए 1 इंग्लैंड, सेकेंड रोची फ्रांस, थर्ड रोची कर्नाटक, फोर्थ रोची नन ऑफ द एबव। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? किए कहीपर? सठिक उत्तरटी किए कहीपर? सठिक उत्तरटी तुम रोची 1 इंग्लैंड। ठीक अच्छे। इंग्लैंड हूँ सठिक उत्तर। इंग्लैंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध में विजय लाभ करथिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। हाउ मेनी इयर्स डिड द थर्ड कर्नाटक वॉर लास्ट। तृतीय कर्नाटक युद्ध केते वर्ष पर्यंत लगी रही? तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 2 इयर्स, सेकेंड 3 इयर्स, थर्ड रोची 4 इयर्स, फोर्थ रोची 5 इयर्स। ताले
सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर सठिक उत्तरटी किए कहीपर सठिक उत्तरटी हूँ तुम 4-5 इयर्स ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा 5 वर्ष धरी जो थर्ड कर्नाटक वार होता परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हिच ट्रिटी वाज कंक्लूडेड आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड कर्नाटक वार तृतीय कर्नाटक युद्ध पर क्यों चुक्ति स्वाक्षरित होता ठीक अच्छे। ताले तुम उत्तर पर ऑप्शन रोची ट्रिटी ऑफ एक्सला चापुल चुक्ति सेकंड रोची ट्रिटी ऑफ पेरिस चुक्ति थर्ड रोची ट्रिटी ऑफ लंडन चुक्ति फोर्थ रोची नन ऑफ द थ्री उपरोक्त तीनोटी मध्य क्योंटी नुहे। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर सठिक उत्तरटी तुम होची ट्रिटी ऑफ पेरिस चुक्ति होची सठिक उत्तर। तृतीय कर्नाटक युद्ध पर एटा माने साइन होता ठीक अच्छे बा स्वाक्षरित होता। परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न तुम रोची व्हाट वर द चीफ रीजन्स ऑफ फेल्युअर ऑफ द फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्रेज मान विरुद्ध रे फ्रेंच माने कहीं विफल होते इंडिया रे। तुम उत्तर ऑप्शन रोची 1 पावरफुल नावी ऑफ द इंग्रेज मानकर शक्तिशाली नौबाहिनी सेकेंड हूँ सॉलिड इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड दृढ़ अर्थनीति थर्ड रोची एफिशिएंट कमांडर्स ऑफ इंग्लैंड एफिशिएंट कमांडर्स बा दक्ष कमांडर और फोर्थ रोची ऑल द थ्री। ताले सठिक उपरोक्त तीनोटी जाक सत कथा। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए सठिक उत्तरटी किए कहीपर सठिक उत्तरटी तुम रोची 4 ऑल ऑफ द थ्री उपरोक्त तीनोटी जाक। परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न रोची इनस्पाइट ऑफ द फाइनल फेल्युअर डुप्लेक्स इज ए स्ट्राइकिंग एंड ब्रिलियंट फिगर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु रोट इट किए लिखिले जदियो डुप्लेक्स विफल होते शेष परिशेष विफल होते किंतु भारतीय इतिहास रे डुप्लेक्स जने अति माने ब्रिलियंट एवं स्ट्राइकिंग फिगर थिले बा जने दृढ़ एवं भल माने चरित्र लोक थिले। ताहले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए सठिक उत्तरटी तुम ऑप्शन रोची 1 VS स्मिथ कहते कथा सेकेंड रे P रॉबर्ट्स कहते P रॉबर्ट्स कथा कहते थर्ड रोची मैलिसन कहते फोर्थ रोची नन ऑफ द थ्री उपरोक्त तीनोटी मध्य किए निए। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए सठिक उत्तरटी हूँ तुम P रॉबर्ट्स ये उपरोक्त कथाटी कहते। आम परवर्ती प्रश्न तथा आज शेष प्रश्न को जीवा शेष प्रश्नटी रोची नेम द कजेस ऑफ द फेल्युअर ऑफ डुप्लेक्स पतनर कारण गुड़िक कौन कह। तुम उत्तर पर ऑप्शन रोची 1 हिज प्राइड ताकर गर्व भाव सेकेंड वीक इकोनॉमी ऑफ फ्रांस रो दुर्बल अर्थनीति थर्ड रोची इनएफिशिएंट मिलिटरी सिस्टम बा माने भल जो मिलिटरी सिस्टम नथिला इनएफिशिएंट थिला फोर्थ रे थिला ऑल द थ्री उपरोक्त तीनोटी मध्य उपरोक्त तीनोटी जाक कारण। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर सठिक उत्तरटी तुम रोची ऑल द थ्री उपरोक्त तीनोटी जाक कारण डुप्लेक्स फेल्युअर कारण थिला ठीक अच्छे। सो आज ये आम सारिबा जो MCQ क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस सेट को परवर्ती आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं आसबि। सो पुणी थे कही रखुच्छी जो मैंने मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कर मोर चैनल टी को लाइक कमेंट वीडियो कि भाव भल कर से कथा धन्यवाद थैंक यू।